ایڈلین صاحب جان چکے ہیں بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو میپکو سے جڑی خبر دیں۔ میپکو نے اگست کا مہینہ 31 کے بجائے 37 دنوں کا کر دیا۔ اضافی دنوں کا بل بھیج کر صارفین کی جیب پر کروڑوں روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا۔ کمال چالاکی سے ریکوری یکمشت 105% تک پہنچا دی گئی۔ صارفین مرتے کیا نہ کرتے، میٹر کٹنے کے ڈر سے زائد ادائیگیاں کر دی۔ نے نیپرا قوانین کی دھجیاں بکھیر دیں۔ جنوبی پنجاب بھر کے صارفین کو 31 روز کے بجائے 37 روز کے بل بھیج دیے۔ زائد دن کی ریڈنگ کے باعث صارفین کی جیبوں سے کروڑوں روپے اضافی نکال لیے۔ حکومت کا کیلنڈر خراب ہو گیا ہے، 30 دن کی وجہ 37 دن کی ریڈنگ بھیجی گئی ہے، اور عالم یہ ہے کہ یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں، جو سب سے افسوس کی بات ہے۔ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں ان کے، لیکن نیکسٹ ٹائم ہم ووٹ نہیں دیں گے اسی چیز پر۔ ہم نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا تھا، وہ چیز پاسبل نہیں ہوئی۔ ریجن بھر کے صارفین میٹر کٹنے کے ڈر سے زائد ادائیگیاں کرنے پر مجبور ہو گئے۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق میپکو کی ریکوری شرح 105% تک پہنچ گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عوام کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ میپکو کی جانب سے کھلم کھلا کرپشن کی گئی ہے، جبکہ میپکو کے نمائندے بھی انتہائی بدتمیز ہیں۔ اتنے بل آ رہے ہیں کہ ہمارے یونٹ کتنے ہوتے ہیں اور کہاں سے کہاں پہنچا ہے، اور مہنگائی اتنی آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اتنے چارجز لگ کے آ رہے ہیں ہمارے، ہم دیہڑی دار بندے کیا پوری کریں۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ پہلے ہی بجلی کی قیمت بڑھ چکی ہے، حکومت کو میپکو کے خلاف نوٹس لینا چاہیے۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ محمد ابراہیم خان، ملتان۔ میپکو نے لیٹ ریڈنگ کے ذریعے صارفین کو زائد بل بھجوانے کی روہی کی خبر پر ایکشن لے لیا۔ اضافی دنوں کی ریڈنگ پر میپکو نے انٹرنل انکوائری کا حکم دے دیا۔ سی او میپکو انجینئر اکرام الحق نے 4 رکنی کمیٹی بنا دی جو 3 دنوں میں رپورٹ پیش کرے گی۔ جی ایم میپکو، چیف انجینئر ڈیولپمنٹ اور ڈائریکٹر آئی ٹی کو انکوائری ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے۔ میپکو نے لیٹ ریڈنگ کے ذریعے صارفین کو زائد بل بھجوانے کی روہی کی خبر پر ایکشن لے لیا۔ سی او میپکو انجینئر اکرام الحق نے 4 رکنی کمیٹی بنا دی جو 3 دنوں میں رپورٹ پیش کرے گی۔ اسی پر شہریوں کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ آپ 1 دن 2 دن کی بات کر رہے ہیں، میرے پاس بل موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ 7 دن 1 ویک جو ہے نا انہوں نے اوپر کر دی ہیں۔ جو یہ کام میں ملوث ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور اس کا کوئی مستقل حل نکالا جائے تاکہ آئندہ کبھی اس طرح کے مسئلے مسائلات جو ہے نا نہ پیش آئیں۔ 24 کو ریڈنگ ہوتی تھی پہلے، پھر 26 کو، اب 45 کو، اب 2 کو چلی گئی ہے۔ یہ ہر ماہ ایسے ہو رہا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا، پریشانی سے پریشانی عوام کی بڑھ رہی ہے۔ فرضی تو جو ہے وہ کہہ دیں گے ہم نے ایکشن لیا، ہم لے رہے ہیں، ہم اگلے دفعہ لیں گے، ہم کمپوزٹ دیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ روہی کے اوپر ہم نے پہلی دفعہ جو ہے نا یہ نیوز دیکھی تھی آج سے کچھ دن پہلے کہ روہی نے جو ہے نا چلے ہمیں آگاہ تو کر دیا، اور نیوز دیکھنے کے بعد ہی میں نے گھر کا بل اٹھایا تو واقعی میرے تو 7 دن کا ڈیفرنس آیا ہوا تھا، تو لیکن یہ ہمیں ملتان میں مہنگائی کا جن بوتل میں بند رکھنے کے لیے حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان نے بڑے ذخیرہ اندوزوں پر ہاتھ ڈالنے کا حکم دے دیا۔ ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان کی سربراہی میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کریم خان کی سربراہی میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر قمر الزمان کیسرانی نے پرائس کنٹرول پر بریفنگ دی۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو کریک ڈاؤن کے لیے تھانے الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان کا کہنا تھا کہ مجسٹریٹ بڑے گرام فروشوں کو مقدمہ درج کر کے موقع پر گرفتار کریں، چھوٹے دکانداروں کو بھاری جرمانے کرنے سے قبل وارننگ دی جائے، پولٹری ریٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ ملتان میں مہنگائی کو بریک نہیں لگ سکی۔ 4 روز کے دوران 20 کلو آٹے کا تھیلا 150 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ قیمت 1250 روپے ہو گئی ہے، جبکہ 15 کلو والا تھیلا 50 روپے مہنگا ہوا ہے۔ مہنگائی سے تنگ شہریوں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ مہنگائی کے وار پر وار، آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ گزشتہ 4 روز کے دوران 20 کلو آٹے کا تھیلا 150 روپے مہنگا ہوا۔ قیمت 1100 سے بڑھ کر 1250 روپے ہو گئی۔ آٹا مہنگا ہونے پر شہری حکومت پر پھٹ پڑے۔ آٹا اتنا مہنگا ہے کہ غریب بندہ کھا نہیں سکتا۔ آٹا ہو گیا، گھی ہو گیا، چینی ہوگی، یہ ہر غریب بندہ، یہ 3 چیزیں ہر غریب اور امیر کھاتا ہے، لیکن یہ تینوں چیزیں انہوں نے مہنگائی کی ہوئی ہے۔ آٹا مہنگا ہے، حکومت جڑی ہے بھاج بھاج کے تھاک پونے دکاندار وٹ کے لیے کنٹرول کرن سنیا حکمرانوں آخر پہ دکان دیا من جا آٹے والے کول بنیا جا سکا کول بنین انہیں کنٹرول کریں۔ دوسری جانب 15 کلو آٹے کا تھیلا 50 روپے مہنگا ہوا، اب قیمت 1000 ہو گئی۔ صدر کریانہ ریٹیلر ایسوسی ایشن ملتان میاں آفاق انصاری کا کہنا تھا کہ ہر دوسرے دن آٹے کے ریٹس بڑھ جاتے ہیں، گندم مہنگی ہونے سے آٹا بھی مہنگا ہوا۔ 15 کلو کا تھیلا تھا 900 روپے کا تھا، ابھی وہ 980 سے 1000 روپے تک کی پوزیشن میں ہے،
जैसे ही 10 किलो का था अभी वो 625 रुपए में फरोख्त हो रहा है। तो ये महंगाई का जब तक गवर्नमेंट को पॉलिसी नहीं देगी, गवर्नमेंट गंदम फराहम करे तो इसको कम किया जा सकता है। गवर्नमेंट के पास स्टॉक मौजूद है, गवर्नमेंट ने अभी तक कोई पॉलिसी अनाउंस नहीं की। शहरियों और कारोबारी लोगों ने हुकूमत से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। आटे की कीमत में मुसलसल इजाफे से शहरी और दुकानदार दोनों परेशान हैं। हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब तबके के शहरों की मुश्किलात में कमी वाक़ हो सके। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। खानेवाल, भक्खर और मुजफ्फरगढ़ में आवाम को आटा लेने के लिए कतारों में लगना पड़ गया। कहीं सस्ता आटा दस्तयाब नहीं तो कहीं महंगा आटा भी नहीं मिल रहा। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं आटा मिल नहीं रहा तो कहीं इतना महंगा है कि आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। खानेवाल और गिरदोनवा में आटे का शदीद बहरान है और लोगों को तवील कतारों में लगकर आटा लेना पड़ा। शहरियों का कहना था कि वो मेहनत मजदूरी करें या लाइनों में लगकर आटा लें। 4 थैले मिल जाते हैं, किसी को एक भी नहीं मिलता। लाइन में खड़े होने के बाद बाज औरतें पीछे से आगे चली जाती हैं, हम लोग लाइन में खड़े रह जाते हैं। उधर बकर में मुकामी फ्लोर मिल्स ने इंतजामिया को आटे की सप्लाई बंद कर दी, जिससे आटे की कीमतों में इजाफा हो गया और 20 किलो के आटे का थैला 1070 रुपए की बजाय 1200 रुपए में मिल रहा है। 1250 से 1270 रुपए तक आटा सेल कर रहे हैं। यहाँ पे अपना मकामी फ्लोर मिल्स हमें आटा नहीं दे रही हैं, जिसकी वजह से हम आटा बाहर से मंगवा रहे हैं, जंग से, लिया से और बकाया जिलों से ले रहे हैं। इस वजह से जो है ना आटा महंगा है। दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में भी आटा नायाब हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 15 दिन से आटा नहीं मिल रहा। आटा न मिलने से गरीब और मजदूर तबका शदीद परेशान है। 15 डी कल उत्ते थे इतना यूटिलिटी कहीं भी अलीपुर दे कहीं भी यूटिलिटी स्टोर दे आटा कहनी जिंदे को सब मुश्किल पेश आती है। बाहर असा गिंदे से 70 रुपए किलो आटा मिल दे। मेरी 400-500 दिहाड़ी में 100 आटा घिना या बे अपने घर सामान पूरा घिना। शहरियों का कहना था कि हुकूमत कीमतों में रिलीफ देने में तो मुकम्मल नाकाम है, अब उन्हें महंगा आटा भी नहीं मिल रहा। अभी आपको ब्रेकिंग दें, एनसीओसी ने कोरोना पाबंदियों में 1 हफ्ते की तोसी का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक 27 अजला में तालीमी इदारे मजीद 1 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। एनसीओसी ने अहम फैसले कर लिए। एनसीओसी ने कोरोना पाबंदियों में 1 हफ्ते की तोसी का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक 27 अजला में तालीमी इदारे मजीद 1 हफ्ते बंद रखे जाएंगे। एनसीओसी ने अहम फैसले किए हैं। कोरोना पाबंदियों का इतलाक 4 से 12 सितंबर के लिए किया गया था। हसास अजला में जनूबी पंजाब के 7 अजला भी शामिल हैं। मुल्तान, रहीम यार खान, खानेवाल, मियांवाली, सरगोदा, खुशाब और बहावलपुर शामिल हैं। एनसीओसी के अहम और बड़े फैसले। एनसीओसी ने कोरोना पाबंदियों में 1 हफ्ते की तोसी का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक 27 अजला में तालीमी इदारे मजीद 1 हफ्ता बंद रखे जाएंगे। जिक्र करेंगे कोविड-19 का। जनूबी पंजाब में कोरोना के खतरात, SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियां, कहीं आगाही मुहिम तो कहीं कार्रवाइयां। मुल्तान में क्रैकडाउन किया गया। रहीम यार खान में कोरोना आगाही के लिए PTI रहनुमा मैदान में आ गए। मियांवाली में ट्रांसपोर्टर्स ने कोरोना SOPs की धज्जियां बिखेर दी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की हिदायत पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सदर अदनान बदर ने कोरोना सर्टिफिकेट न देने पर 2 पेट्रोल पंप सील कर दिए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 4 दुकानें और गोदाम भी सील कर दिए गए। चेकिंग के दौरान 35,000 से ज्यादा के जुर्माने किए गए। उधर रहीम यार खान सिटी पुल पर PTI सिटी सदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन राना मंजूर हुसैन, टीम ग्रीन प्रोजेक्ट हेड नदीम रजा की जानिब से आगाही वाक की गई और शहरियों में मास्क तकसीम किए गए। PTI रहनुमाओं ने कहा कि कोरोना का इलाज सिर्फ एहतियात है। मियांवाली जनरल बस स्टैंड पर कोरोना SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियां जारी हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि लॉकडाउन पर अमल दरामद जरूरी है, मगर बच्चों का पेट कैसे पाले। सीधी गाल है, कोई मास्क पहना नहीं, कोरोना बहुत ठीक है। इसे बहुत डर लगता है, बहुत ऐसा गरीब लोग हैं भाई, गड्डी बंद थी बयान असा रोज गणाने कोई मसले ही कौन है, कोई ऐसा बंदे ही कौन या कोई पाकिस्तान इमदाद करे। इमरान वजीर आजम बड़े इमरान की था, कुछ ही नहीं की था। गाड़ियों में इक्का दुक्का मुसाफिर मास्क लगाए दिखाई दिए। शहरियों का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंदिश के बावजूद भी चल रही है। उस तरह नहीं चल रही जिस तरह पहले चल रही थी। यहाँ पर कारें, कैरी डब्बे हैं, उनको कोई रुकावट नहीं है, इसलिए चंद गाड़ियों वालों ने 3-3, 5-5 सवारी बिठा के जा रहे हैं। अवामी हलकों के मुताबिक जब तक इंतजामिया कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर सख्त एक्शन नहीं लेगी, तब तक कोरोना SOPs पर अमल दरामद नामुमकिन है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली।
अब कुछ खबरें शामिल करेंगे सियासी मंजरनामे से। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है पीपल्स पार्टी विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाएगी। मुल्क ने मियां साहब की हुकूमत देखी और खान साहब को भुगता। अब मुल्क अवामी हुकूमत के लिए तरस रहा है। इलेक्टेड का हर एक वादा झूठा और धोखा है। उन्होंने रहीम इमरान खान के वर्कर्स कन्वेंशन में अपोजिशन जमातों को भी खूब आड़े हाथों लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में हुकूमत बनाने का किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ वफाकी हुकूमत में हुकूमत साजी करेगी मगर सूबाई हुकूमत में भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। जो वादे इस सिलेक्टेड ने किए थे वो भी बड़े बड़े वादे थे, 90 दिन में मुकम्मल होने वाले थे मगर एक भी पूरा नहीं हुआ। और आपने देखा कि हर एक वादा झूठा निकला, हर एक वादा धोखा निकला। ऐसे नहीं हो सकता है कि वोट की इज्जत की बात हो तो हम कहें कि वोट इस्तेमाल करो, बेजदार को भगा दो, वोट इस्तेमाल करो, इमरान को घर भेजो। अवाम तंग है, अवाम नाराज है, आपकी वजह से हमसे भी नाराज हो रहे हैं। अगर आप वोट का इज्जत करते हो तो आप अपना वोट इस्तेमाल तो करो, बुजदार को चैलेंज करो, मिलके मुकाबला करो। ये गिर जाएगा, ये कठपुतली का कठपुतली है। आप हिम्मत पकड़े, आप अवाम का सोचे, किसी की अना, किसी का पर्सनल प्रेफरेंस को तरजीह ना दे। आप हमने मिलके पंजाब को बचाना है। अगर आप तैयार नहीं हुए तो अवाम आपको माफ नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जनूबी पंजाब को इज्जत दी। पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब से सदर, स्पीकर, वज़ीर-ए-आज़म, गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला और वज़ीर खारजा दिए। पीपल्स पार्टी की मोहब्बत को दिलों से नहीं निकाला जा सकता। वो रहीम इमरान खान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। अली भुट्टो साहब ने सरायकी व सेब के लिए यहां से 2 गवर्नर बनाए, एक गवर्नर पंजाब, एक गवर्नर सिंध। इसी तरीके से उन्होंने मुल्तान से स्पीकर बनाया कौमी असेंबली साहिबजादा फरूक अली साहब, और उन्होंने गवर्नर मुस्तफ़ा खर साहब को बनाया और वजीर आला भी बनाया, और नवाब सादिक हुसैन कुरैशी को भी वजीर आला बनाया। तो अब आप समझ सकते हैं कि सरायकी वसेब से भुट्टो खानदान का कितनी कुर्बत थी। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा तशरीफ लाईं तो उन्होंने इस वसेब से उन्होंने गवर्नर भी बनाया और उन्होंने स्पीकर कौमी असेंबली मुझे बनाया, और उन्होंने सदर पाकिस्तान इसी वसेब से सरदार फरूक लगारी साहब को बनाया। इसके अलावा उन्होंने उस वक्त वजीर खजाना जो थे सूबाई, वो भी उन्होंने। दूसरी जानिब साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद का कहना था कि बिलावल भुट्टो का जनूबी पंजाब का दौरा कामयाब हो गया। यहाँ की महरूमियों को पीपल्स पार्टी दूर कर सकती है। जनूबी पंजाब को सूबा भी पीपल्स पार्टी ही बनाकर देगी। वो वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। साहब, ये कोई जलसा नहीं है, ये एक नुमाइंदा इजलास है रहीम इमरान खान के उन शख्सियात का जिन्होंने साबका बल्दियाती इलेक्शन में अपनी मेहनत की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जमाती इलेक्शन में 81 सीटें जितवा के दी। हुकूमत नून लीग की थी, 81 सीटें पीपल्स पार्टी जीती और 42 या 44 सीटें नून लीग जीती। तो ये नुमाइंदा इजलास है। मैं इन सब को बहुत अपने दिल के करीब रखता हूँ। पीपल्स पार्टी का भी सरमाया है और ये जिला रहीम इमरान खान की हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटी का भी सरमाया है। साउथ पंजाब का जो दौरा रहा चेयरमैन साहब का, वो निहायत कामयाब रहा। मैंने
जो नज़ारा देखा साउथ पंजाब में हकीकत माने मैंने इससे पहले ऐसा नज़ारा सियारा पहले। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बहावलपुर कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वार्ड नंबर 1 के उम्मीदवार रेहान बिन जावेद कहते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में 12 सितंबर पीटीआई की जीत का दिन होगा। कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों ने घर घर इंतखाबी मुहिम चलाना शुरू कर दी। वार्ड नंबर 1 से पीटीआई के उम्मीदवार रेहान बिन जावेद ने कहा है कि वो फतह के करीब पहुंच गए हैं। बड़ा करम है जी, बहुत शुक्र है, बड़ा विलिंग हैं लोग और बड़े एक्साइटेड हैं कि 12 तारीख जितनी करीब आएगी वो वोट डालने के लिए बेचैन हैं, बेताब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह कैंटोनमेंट बोर्ड पाकिस्तान पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी। पीटीआई के सपोर्टर्स भी पुरुमीद हो गए। कहते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में 12 सितंबर पीटीआई की जीत का दिन होगा। वोटर्स ने रेहान बिन जावेद को सोशल और मुतहरिक वर्कर करार दिया। रेहान भाई एक सोशल आदमी है और हर वक्त अवेलेबल होते हैं, जिस वक्त भी जाएं। और फिर मीनवाइल अभी इन्होंने काम भी करवाए हैं, मतलब हमारी सोलिंग वगैरह ये सब इन्होंने करवाया है। और भी कोई मसला होता है तो हम इनको फोन कॉल कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काम हो जाता है। बहावलपुर कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में 5 वार्ड बनाए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अहम मुकाबला वार्ड नंबर 1 में देखने को मिलने के इम्कानात हैं। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। मियांवाली में डीसी खुर्रम शहजाद ने सी एजुकेशन और प्रिंसिपल दानिश स्कूल के दरमियान सुलह करा दी। प्रिंसिपल दानिश स्कूल ने सी एजुकेशन से मुआफी मांग ली। सी एजुकेशन ने मुआफी को कबूल किया और प्रिंसिपल को गले लगा लिया। सी एजुकेशन और प्रिंसिपल दानिश स्कूल की सुलह हो गई। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली खुर्रम शहजाद ने दोनों अफसरों की सुलह करा दी। प्रिंसिपल दानिश स्कूल ने सी एजुकेशन से मुआफी मांग ली है। सी एजुकेशन ने मुआफी को कबूल की और प्रिंसिपल को गले भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस की तैनाती के खिलाफ जनूबी पंजाब में हड़ताल। वकला ने जिले अदालतों और बाइकआउट, हाईकोर्ट बेंचेस का बाइकआउट कर दिया। दूर दराज के इलाकों से आए साइलिन रुल गए। मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब के वकला ने भी सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस की तैनाती के खिलाफ हड़ताल कर दी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान, बहावलपुर, तहसील और जिले बार्स के ओहदेदारान इस्लामाबाद में होने वाली वकला हड़ताल में शिरकत कर रहे हैं। हाईकोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान की जानिब से वकला को मुकदमात की पैरवी न करने की हिदायत की गई है। हड़ताल की गई है एक मेरिट की वजह से। जब मेरिट को डी मेरिट किया जाएगा, एक ज़ाब्ते से हट के लोगों को अपॉइंट किया जाएगा और जो ज़ाब्ते में आते हैं जिनका मेरिट बनता है उनको डी मेरिट करके पीछे धकेला जाएगा, तो इंसाफ नहीं हो सकता। बेसिकली इंसाफ के लिए ही वकला ने स्टैंड किया और वकला हमेशा इंसाफ के लिए लड़े हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी लड़ते रहेंगे। बार कौंसिल ने हड़ताल की खिलाफ वर्जी करने वाले वकला के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया भी दिया है। ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन में जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के इकदाम को गलत करार देते हड़ताल की कॉल दी गई थी। हड़ताल के बायस शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आए रोज पेशियां, आए रोज हड़ताल होती रहती है। हम लोग अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आते हैं। ये मैंने फाइलें उठाई हुई, आज जब आया हूँ मैं अपनी पेशी पर तो यहाँ पे हड़ताल है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये वकील जो हैं बिल्कुल भी बात नहीं सुनते, आए रोज किसी न किसी वजह पे हड़ताल करके खड़े हो जाते हैं। दूसरी जानिब वकला हड़ताल के बायस मुकदमात की पैरवी के लिए आने वाले साइलिन रुल गए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार में नए आने वाले कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के एजाज में तकरीब हुई। बार ओहदेदारान समेत वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। माहिर इमरान की रिपोर्ट देखिए। अपने एजाज में मुनक्किद तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान मोहम्मद अकमल खान का कहना था कि अबूरी जमानतों और मामूली जराइम में मुलविस मुल्जिमान को जमानती मुचलके देने की जरूरत नहीं। मुल्जिमान के बुरसा का बयान हल्फी और शनाख्ती कार्ड की कॉपी ही काफी है। वकला अगर अदालत पेश नहीं हो सकते तो तहरीरी या वीडियो लिंक के जरिए बहस कर सकते हैं। वकील साहब को या क्लर्क हैं या जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके मैं उनको बता देता हूँ कि आप सिर्फ एक आईडी कार्ड वाला जेन्युइन जामन लाइए जो कि इस एक्यूज का वालिद, भाई, कोई भी अजीज हो सकता है और आपको फर्द जमाबंदी रजिस्ट्री की जामन की जरूरत नहीं है, ये जामन है। ट्रांसफर होने वाले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर नवाज का कहना था कि मुल्तान बार में काबिल वकला हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम का कहना था कि अब इंतजामिया को भी बार और बेंच इसका हिस्सा बनाएंगे। सदर बार सैयद यूसुफ अकबर नकवी का कहना था कि नौजवान वकला को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए इकदाम किए जाएं। मैनेजमेंट के साथ बैठेंगे और देखेंगे कि हम उसमें अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं जिससे आप लोगों को भी आसानी हो और मुझे भी आसानी हो। बाकी अब इधर आ गए हैं तो अपने अमल से, एक्शन से आप कुछ लोगों के साथ चलेंगे, जुबानी बातें कम करें।
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے کہا کہ لوکل کمیشن کی جگہ شہادتیں خود جج کو لکھنا ہوں گی، تاہم ڈیفنس کونسل کا آپشن کھلا ہے۔ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار اسامہ بہادر نے انجام دیے۔ تقریب کے اختتام پر مہمانوں کو شیلڈ بھی پیش کی گئی۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ ماہر عمران نواز، روہی، ملتان۔ ملتان ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کو پانی کے مسائل کا سامنا ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر پانی کی ٹوٹیاں غائب ہو چکی ہیں، نشئی نل اتار کر چلے گئے ہیں۔ انتظامیہ نے بھی نل لگانے کی بجائے اندر پلستر کر دیا ہے۔ سہیب گورمانی کی رپورٹ دیکھیے۔ ملتان ریلوے اسٹیشن سے پانی کی ٹوٹیاں غائب ہو گئیں، نشئی ٹوٹیاں اتار کر لے جاتے ہیں، انتظامیہ دیکھتی رہ جاتی ہے۔ انتظامیہ نے نئی ٹوٹیاں لگانے کی بجائے ٹوٹیوں والی جگہ پر کیل گاڑ دیے۔ ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کو پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں۔ کراچی سے ملتان تک کا سفر بہت زیادہ سفر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مسافر راستے میں انہیں پانی نہیں ملتا۔ جب ملتان آتے ہیں تو یہاں پہ بھی ٹوٹیوں کا حال آپ کے سامنے ہے۔ ایک ٹوٹی لگی ہوئی ہے جس پہ 10 مسافر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسافروں نے کہا کہ اسٹیشن پر وضو کے لیے پانی نہیں، ٹوٹیاں نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ پانی کے حصول کے لیے لائنیں لگنا معمول بن چکا ہے۔ ٹوٹیاں نہیں لگائی، ان کی غلطی انتظامیہ کی، ٹھیک ہے۔ کوئی مسافر جیسے آتے ہیں، فیملی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، پانی پینے کا، وضو کرنے کا 100 مسئلے مسائل انتظامیہ کو چاہیے ٹوٹی لگائیں۔ تو 4 میں سے ایک ہے، اس کو بھی کوئی پتہ نہیں، دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، نہیں پوچھتے، جو بھی ہے۔ ریلوے انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے۔ نئی ٹوٹیاں لگانے اور مسافروں کے لیے سہولیات بہتر کرنے کی بجائے مشکلات میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ سہیب گرمانی، روہی، ملتان۔ ڈیری خان میں صحت کے حوالے سے اچھی خبر ہے۔ 136 بستر کے حامل سردار فتح محمد خان بزدار انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی اپریل 2022 تک تکمیل کی نوید سنا دی گئی ہے۔ کمشنر ڈیری خان وی این سارا اسلم نے منصوبے کی تکمیل میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ ڈیری خان سے صحت کی سہولیات کے حوالے سے اچھی خبر منظر عام پر آ گئی۔ 136 بستر کے حامل دل کے اسپتال کی اپریل 2022 تک تکمیل کی نوید سنا دی گئی ہے۔ کمشنر ڈیری خان وی این سارا اسلم نے منصوبے کی تکمیل میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی تھی۔ کمشنر سارا اسلم کی سربراہی میں کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ سے متعلق اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈپٹی کمشنر ذیشان جاوید، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن خالد منظور، اے ڈی سی آر حمد حسن رانجھا، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ عبید الرشید، اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد عدیل، لا آفیسر چودھری محمد اکرم، پروجیکٹ ڈائریکٹر آئی ٹیپ محمد عمران اور دیگر افسران نے شرکت کی۔